Hello and welcome to this week's online service. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के ऑनलाइन सभा में। Why don't you stand up wherever you are and we'll praise God together. क्यों ना आप जहां कहीं पर भी हो खड़े हो जाएं ताकि हम एकत्रित प्रभु की स्तुति कर सके। Come on, church, let's all stand up and praise Him. Yeah. Come on. Clap, clap. Wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter what I'm feeling, I still believe it's what you deserve. स्तुति तेरी हो सदा, yeah. स्तुति तेरी हो सदा. Come on. दुनिया से कहूँ तू है महान, सदा ये गाऊँ तू है महान, योग्य है तू है महान, यीशु तेरे नाम को उठाए हम. Come on. Jump, jump. नाम को उठाए हम. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Hey, hey. Praise Him, yeah. Wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe it is what you deserve. Yeah, yeah. स्तुति तेरी हो सदा. स्तुति तेरी हो सदा. Yeah. दुनिया से कहूँ तू है महान, सदा ये गाऊँ तू है महान, योग्य है तू है महान, यीशु तेरे नाम को उठाए हम. Yeah, yeah, here we go. Jump, 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 jump. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Yeah, praise Him, praise Him. Yeah, 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 yeah. And everything that has breath, praise the Lord. He is worthy to be praised. Everybody shout out to the Lord. You wanna shout it out? We lift you high, singing what adore. You are worthy to be praised. Everybody shout out to the Lord. Yeah, come on, clap. तू है महान, तू है महान, तू है महान, यीशु तेरे नाम को उठाए हम. Yeah, yeah, yeah. Come on. नाम को उठाए हम. Lift His name up. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Come on, इसकी स्तुति करें. Yeah. Let everything that has breath praise the Lord. He is worthy to be praised. Everybody shout out to the Lord. Come on, shout it out. Lift it higher, singing what adore. You are worthy to be praised. Everybody shout out to the Lord. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. What an awesome time of praise. और कितना अच्छा
समय था स्तुति का। Now we come around our time of tithes and offering. अब समय है भेंट और दशमांश का। And why don't you make note of the details on the screen और क्यों ना आप स्क्रीन पर जो जानकारियों को देख पा रहे हो उसे नोट डाउन कर ले। while I share a thought from the Bible. और मैं बाइबल में से एक छोटा सा वचन आपके साथ में बांटना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 6 verse 18. और दूसरे कोरिन्थियों का किताब 6 अध्याय 18वां वचन ये कहता है, And I will be your father, और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा and you will be my sons and daughters, और तुम मेरे बेटा और बेटी कहलाओगे, says the Lord Almighty. ये प्रभु कहता है। Let's read another verse. आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ें। 2 Corinthians chapter 9 verse 8. और दूसरे कोरिन्थियों का किताब 9वां अध्याय 8वां वचन, And God will generously provide all you need. और प्रभु आपको जो भी जरूरतें हैं उन सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Now I want to share this thought of a father and son. और मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगा इस सोच को जो एक पिता और एक बेटे के बीच में होता I'd है। like to tell you about my father. और मैं मेरे पिता के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। My dad always wanted me to be a pastor. मेरे पिता जो है हमेशा चाहते थे कि मैं एक पासवान बनूं। That was his desire and his will that he wanted me to be. और वो एक इच्छा थी उनके जीवन में मेरी ओर, To be like him because he is also a pastor. ताकि मैं उनकी तरह बनूं क्योंकि वो भी एक पासवान है। In the same way, our Father in heaven wants us to be like him. और उसी रीति से हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो चाहता है कि हम उसकी तरह बने। He calls you and me sons and daughters. और वो आपको और मुझे अपना बेटा या फिर बेटी कहलाता है। And then he tells us that he is a generous God. और वो हमसे ये कहता है कि वो जो है दानी प्रभु है। So tonight when we are giving, we need to be like him and give generously. तो आज की शाम जब हम प्रभु के राज्य में बोरे, हमको जो है अपने पिता की तरह बनना है दानी। Let us pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Thank you, Jesus, for your will for us to be generous. धन्यवाद यीशु की आपकी इच्छा है ताकि हम जो है आपकी तरह दानी बने। Help us to give like you want us to give, Lord. हमें मदद करना ताकि हम वैसे बन पाए जैसे आप चाहते हो। Bless us more so that we can bless even more. हमें आशीष करना ताकि हम और भी आशीष कर पाए। All the glory and honor be to you, Jesus. सारा आदर और महिमा केवल और केवल आप ही को मिले यीशु। Amen. आमीन। Why don't you stand up and we'll worship God together? क्यों ना आप लोग खड़े हो जाएं और हम एकत्रित आराधना करेंगे। Oh Jesus, oh Shiandarabasie, oh Shiandarabasie, Shikorobondarabasie, oh Lord, I come to you, Jesus. Promete paz nada.
रूहे खुदा हम पे बरसा तेरी ज़रूरत तेरा राज हो तेरी मर्जी हो यहाँ स्वर्ग जैसे रूहे खुदा हम पे बरसा तेरी ज़रूरत तेरा राज हो तेरी मर्जी हो यहाँ स्वर्ग जैसे रूहे खुदा हम पे बरसा तेरी ज़रूरत तेरा राज हो तेरी मर्जी हो यहाँ स्वर्ग जैसे Oh we worship you Lord तेरी आराधना हम करते हैं तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो एक अद्भुत कार्य हो यहाँ तेरा रूह जो आया है Lord God, we give this time into your hand, Lord Jesus. प्रभु इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। Bless us all, Lord Jesus. प्रभु हम सभी को आशीषित करना। Lord, help me speak प्रभु हमें मदद करना ताकि हम बात कर सकें and help them listen, Lord. और मदद करना ताकि वो लोग सुन पाए। And Holy Spirit, you be the one who is communicating amongst us. और पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में रहे ताकि आप हमसे वार्तालाप करें। And God, I give this word unto your hand. और प्रभु इस वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं In Jesus' name I pray. और यीशु के मधुर नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So the word today I'm going to share about is तो आज की शाम जो मैं वचन आपके साथ में बांटने वाली हूँ वो ये है, what does God wants you to remember. प्रभु क्या चाहता है कि आप लोग याद रखें। Often we might forget the things that God wants us to remember. और अक्सर शायद हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं जो प्रभु चाहता है कि हम याद रखें। It's not wrong to forget something, और ये गलत नहीं है कि हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, but it is when we don't remember something in the time of need. लेकिन हाँ वो चीज जरूर गलत है जब हमको शायद वो चीज की जरूरत पड़ती है और हम उस बात को भूल जाते हैं। Currently we are in a situation where it's a global pandemic. अब ये समय और या फिर ये ऐसा माहौल चल रहा है जहाँ पर हर जगह पे ये बीमारी फैली है And the whole world is struggling all together. और ये पूरा दुनिया जो है इस बात को लेकर जूझ रहा है। And it seems like a war for survival. और ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये जंग है जहाँ पर लोगों को जिंदा रहना है, But there is a war going inside of us. लेकिन हमारे अंदर जो है एक जंग छिड़ी है Whether we should live or not. कि हम जिंदा रहना चाहिए या नहीं। A war between your peace and your agony. और एक ऐसा
जंग जो आपकी शांति के साथ में जूझ रहा है। A war between your view on your life and God's view on your life. और ये ऐसी जंग जहाँ पर प्रभु का नजरिया आपके जीवन को लेकर एक तरीके का है और आपका खुद का नजरिया एक अलग तरीके का है। And a war to revive your spirit again. और ऐसी जंग जहाँ पर आप अपनी आत्मा को फिर एक बार जिला सकते A हो। war to be filled again in His presence. और ऐसी जंग जहाँ पर आप उसकी उपस्थिति को लेकर अपने जीवन में दोबारा खड़े हो सकते हो। And a war to be filled again with His anointing in your spirit. और ऐसी जंग जहाँ पर आप फिर एक बार उसके अभिषेक से अपने जीवन में भर सकते हो। And there is so much to go on. और सच में ऐसी कितनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। In middle of this chaos and all the turmoil that we are seeing every single day, और ये सारी चीजें जो हो रही है और जो हम देख रहे हैं इस मौसम में, we might have forgotten something. और शायद हम भूल गए एक We, बात को, we might have forgotten something that we used to rejoice knowing of. और शायद हम ये चीज को भूल गए हैं जिस चीज को लेकर एक समय था जहाँ पर हमें हमेशा हम आनंदित रहते थे। So here are 3 things that God wants you to remember. तो यहाँ पर मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगी जो प्रभु चाहता है कि आप लोग हमेशा याद रखें। First thing that God wants you to remember is और सबसे पहली चीज प्रभु चाहता है कि आप लोग याद रखें वो ये है, God wants you to remember your worth. प्रभु चाहता है कि आप लोग ये याद रखें कि आपका मोल क्या है। I would like to read from Ephesians chapter 2 verse 10. और मैं पढ़ना चाहूंगा इफिसियों का किताब से 2 अध्याय 10वें वचन से। The verse says, और वचन ये कहता है, "For we are God's masterpiece. क्योंकि हम जो है प्रभु के एक अनोखी चीज है। He has created us anew in Christ Jesus, उसने हमें प्रभु यीशु में नया बनाया है so we can do good things He planned for us long ago." ताकि हम लोग वो सारी अच्छी चीजें कर सके जो उसने हमारे जीवन में योजना के रूप में रखा है। In this tough situation going around you, और ये मुश्किल समय जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, you might be forced to forget one thing, और शायद आप जबरन ये चीज को भूल रहे हो that your worth is in God. कि आपका मोल जो है प्रभु में है। And every time you feel worthless और हर बार जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मोल नहीं है, because you can't do the things that you planned before, क्योंकि आप वो चीजें नहीं कर पाते हो जिसके बारे में आपने योजना करके रखा or है, you might have not received the thing that you were supposed to receive, या फिर शायद आपको वो चीज नहीं मिला है जो आपको मिलना चाहिए था, or just you're being depressed alone. या फिर शायद बस आप अकेले में ही जूझ रहे हो। I would like to encourage you with this word. और मैं इस वचन को लेकर जो है आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी। Whenever you feel that way, और जब भी आपको ऐसा लगता है, whenever you forget your word, और कभी भी आप अगर अपने वचन को भूलते हो, go back to the scripture. फिर एक बार वचन की तरफ जाओ। Ephesians 2 verse 10. इफिसियों का किताब 2 अध्याय 10वां वचन। The first phrase itself says, और सबसे पहला वचन ही ये कहता है, "For we are God's masterpiece." क्योंकि हम जो है प्रभु के हाथों में एक अनोखे रूप से बनाए गए हैं। Imagine being the Creator's masterpiece. और सोचिए कि इस सृष्टि को जिसने रचा है वो ये कह रहा है कि हम एक अनोखे रूप में बनाए गए The हैं। Creator who have created every other thing you could ever think of. और वो सृष्टि करता है जिसने वो हर एक चीज को रचा है जो शायद ही आप कभी सोच सकते हो। You're not only His masterpiece, और आप एक अनोखी रूप से बनाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, it also says that और वचन ये भी कहता है He has created us anew in Christ Jesus, कि उसने हमको यीशु मसीह के रूप में एक नया बनाया है, so that we can do the good things He had planned for us. ताकि हम वो सारी अच्छी चीजें कर सके जो उसने योजित किया है अपने जीवन में। So if you're feeling worthless because your plans failed in this season, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई मोल नहीं है क्योंकि आपकी सारी योजनाएं हार चुके हैं या फिर वो सारी चीजें नहीं हुई है, remember that He has already created you anew in Christ Jesus. याद रखना कि ये प्रभु ने जो है आपको यीशु मसीह के रूप में आपको पहले से ही नया बनाया है, So that you can do all the good things that He has planned for you. ताकि आप वो सारी अच्छी चीजें कर सको जो उसने आपके जीवन में योजना के रूप में रखा है। So church, what does God wants us to remember? तो कलीसिया, प्रभु क्या चाहता है कि हमको याद रखना है? God wants you to remember your worth. प्रभु चाहता है कि आप लोग ये चीज को याद रखें कि आपका मोल है। And second thing, और दूसरी चीज, God wants you to remember His promises. प्रभु चाहता है कि आप लोग याद रखें उसकी वाचाओं को। Psalms chapter 89 verse 34 says, और भजन संहिता का किताब
89 और 34 ये कहता है, No, I will not break my covenant. नहीं, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ में कभी नहीं तोड़ूंगा, I will not take back a single word I said. और मैंने जो भी शब्द कहे हैं उस एक भी शब्द को मैं वापस नहीं लूंगा। In this word, God says, no matter what, I will never ever break my promise. और इस वचन में प्रभु ये कहता है कि भले कुछ भी हो जाए, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ में कभी नहीं तोड़ूंगा। You might have heard this often from Bible. और ये आपने बाइबल में से अक्सर इस वचन को सुना होगा। His words are yes and amen. उसका वचन जो है हाँ और आमेन है हमेशा। In the season where you might be feeling that your promises are far away from you, और इस समय में शायद ही आपको ऐसा लगता है कि आप वो सारे वाचाओं से कोसों दूर हो, or you might be feeling like giving up on your promised miracles, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारी वाचाएं जो आपको दी गई थी या फिर वो सारे चमत्कार के शब्द जो आपके ऊपर बोले गए थे, उन सारी बातों पर आपको जो है हार मानना है। the reason for this feeling is very simple. और इस फीलिंग का जो कारण है वो बहुत ही आसान है, The reason is that और वो कारण ये है we are human beings. कि हम इंसान हैं We plan our ways and calculate our life in our own mind. और हम अपने जीवन को जो है अपने रूप से या फिर अपने तरीके से सोचते हैं या फिर योजनाएं बनाते हैं। But in this season where we are feeling like our plans are not succeeding, लेकिन इस मौसम में जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी योजनाएं जो है पूरी नहीं हो पा रही है, we might end up feeling disconnected from God's word. और शायद ही ऐसा हो सकता है कि हम प्रभु के वचन के साथ में नहीं जुड़े रह पाए, And our promise is simply because we are discouraged long ago in this situation. और हमारी वाचा है भी क्योंकि हमको जो है निरुत्साह मिली है बहुत समय पहले। First of all, remember that सबसे पहले आप लोग ये याद when रखें, you feel like this, जब भी आपको ऐसा लगता there है, is a verse in Bible you should remind yourself. बाइबल में जो है एक वचन है जिसको आपको याद करना है, Isaiah 55:8 says, और यशायाह का किताब 55 अध्याय 8वां वचन ये कहता है, My thoughts are nothing like your thoughts, और मेरी सोच आपके सोच जैसे नहीं है, says the Lord, ये प्रभु कहता है, and my ways are far beyond anything you could imagine. और मेरे रास्ते जो है आपके रास्तों से बहुत अलग है जो शायद ही आप सोच सकते And हैं। about your promises, और तुम्हारे वचनों को, तुम्हारी वाचाओं को लेकर God might have promised you about your marriage or your job. प्रभु ने शायद ही आपको वाचा दिया है आपके काम के बारे में या फिर आपकी शादी के बारे में। It might be about your life partner, your house, your family, your business. और ये शायद ही आपके जीवन के बारे में है या फिर आपके लाइफ पार्टनर के बारे में या फिर आपके बिजनेस के बारे में है, Or it might be also about your future. और ये शायद आपके भविष्य के बारे में भी है, Or he might have promised you about giving a gift that you have waited long for. और शायद ये आपके एक तोहफे के बारे में जिसको लेकर आपने बहुत समय तक इंतजार किया। But if you find the season as a halt, then hold on. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ये वो मौसम है जहाँ पर थम चुका है, तो आपको एक चीज याद रखना है, Remember, he is a God of absolute truth. याद रखना कि वो प्रभु ऐसा प्रभु है जो सच है। If he says it, he does it. अगर वो कहता है तो वो करता है। So I would like to encourage you to remember this. तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी ताकि आप लोग इस चीज को याद रखें। Psalms 89 verse 34, भजन संहिता 89 और 34 ये कहता है, he says that, वो ये कहता है, I will not break my covenant, मैं अपनी वाचाओं को कभी नहीं तोड़ूंगा, and I'll not take a single word back what I have uttered from my mouth. और मैंने अपने जबान से या फिर अपने मुंह से जो भी वचनों को बोला है वो मैं कभी भी वापस नहीं लूंगा। So church, if you're feeling hopeless about your promises coming true, तो कलीसिया, अगर आपको निराशा हो रही है कि आपकी वाचा जो है पूरा नहीं हो रहा है, just remember that he will never break his covenant. याद रखना कि वो अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ता। So church, before moving towards our third point, ठीक है कलीसिया, तो हम लोग तीसरे मुद्दे की तरफ बढ़ने से पहले, I would like to repeat the points again. और मैं फिर एक बार जो है पहले मैंने जो 2 मुद्दे बताए वो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगी। What does God wants you to remember? प्रभु क्या चाहता है कि आप लोग याद रखें? God wants you to remember your worth. प्रभु चाहता है कि आप लोग याद रखें कि आपका क्या मोल है, God wants you to remember his promises. और प्रभु चाहता है कि आप लोग याद रखें उसके वाचाओं को। And third point, और तीसरा मुद्दा, God wants you to remember your destiny. और प्रभु चाहता है कि आप लोग याद रखें कि आपका मुकाम क्या है। Jeremiah 1:5 says, और इर्मिया का किताब 1 अध्याय 5वां वचन ये कहता है, I knew you before I formed you in your mother's womb. और मैंने तुमको तुम्हारे माँ के कोख में डालने से पहले से ही मैं जानता हूँ। Before you were born,
और तुम पैदा होने से पहले ही I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. और मैंने जो है तुमको चुना है ताकि तुम पूरे सृष्टि में या फिर पूरे जहान में जो है एक भविष्यद्वक्ता बनो। The meaning of destiny is और मैं तुमको बताना चाहूंगी मुकाम का मतलब क्या है। things that happen in your life that are out of your control. जो चीज है आपके जीवन में होती है वो आपके कंट्रोल के बाहर है, यानी कि आप उसको नहीं अपने ताबे में ले सकते हो। We do have destinies, but our destiny is in God. और हमारे पास में जो एक मुकाम होता है लेकिन वो जो है प्रभु के हाथ में होता है And He controls it. और वो जो है उसको अपने ताबे में रखता है। Even after believing in God, और प्रभु पर विश्वास करने से पहले भी when bad things happens to us constantly, जब गलत चीजें अपने जीवन में हमेशा होती रहती है we might have been thinking that it's our final destiny. और शायद हम लोग ये सोचते हैं कि यही है मेरा आखिरी मुकाम, But as children of God, लेकिन हम प्रभु के बच्चे होने के नाते there is no such thing as a bad destination. और ऐसा कोई बात ही नहीं होता है कि खराब मुकाम। The thing that we have is only plans of our God for our life. जो चीजें हमारे जीवन में होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की योजनाएं होती है। So if you're thinking that there is no good thing that can happen to you in this moment, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस समय में आपके जीवन में शायद ही कोई अच्छा काम हो सकता है, and or else if you're thinking in your mind that you're always destined for bad things, या फिर शायद आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में हमेशा गलत चीजें ही होती है, God wants to remind us a verse. प्रभु आपको एक वचन के बारे में याद कराना चाहता है। Jeremiah chapter 29 verse 11. और इर्मिया का किताब 29वां अध्याय 11 वचन ये कहता है, For I know the plans I have for you, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सारी योजनाएं जो मैंने आपके जीवन में रखी है, says the Lord. ये प्रभु कहता है। They are plans for good and not for disaster, और ये योजनाएं अच्छाई के लिए ना कि बुराई के लिए, to give you a future and a hope. ताकि आपको एक आशा दे और एक अच्छा भविष्य दे। And if you're still struggling to believe in the destiny of God, और अगर आपको बहुत ही मुश्किल हो रहा है ताकि आप उस प्रभु के मुकाम पे विश्वास करो, because of the things that you're going through right now, क्योंकि वो सारी चीजों से जो आप कर गुजर रहे हो अपने जीवन में इस समय में, church, I would just like to give you one strong reason to believe. कलीसिया, मैं आपको एक ऐसा कारण देना चाहूंगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण है ताकि आप लोग इस बात पर विश्वास कर सको। I would read again Jeremiah 1:5. और मैं फिर एक बार पढ़ना चाहूंगी इर्मिया का किताब 1 अध्याय 5वां वचन। I knew you before I formed you in your mother's womb. और मैंने तुमको अपनी माँ के कोख में डालने से पहले से ही मैं तुम्हें जानता हूँ। Before you were born, I set you apart और तुम पैदा होने से पहले ही मैंने तुमको अलग करके रखा है and appointed you as my prophet to the nations. और मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम एक भविष्यद्वक्ता बन सको पूरे जहान के लिए। So whenever you feel like life has knocked you down or you feel like you're unknown in your surroundings, और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन ने जो है आपको नकार दिया है या फिर आपके इर्द गिर्द चीजें सही नहीं हो रही है, remember that God has a good plan for you and your future and hope. और याद रखना कि प्रभु के हाथों में जो है आपके जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, एक आशा है और एक अच्छी भविष्य भी है। And also He has chosen you even before you existed. और आप यहाँ पर होने से पहले से ही प्रभु ने जो है आपको चुना है। So your destiny in God is wonderfully amazing. तो आपका मुकाम प्रभु यीशु में जो है बहुत ही बढ़िया है। No matter what you feel like, church, और भले ही आपको कैसा भी महसूस हो कलीसिया, this season shall pass too. और ये समय या फिर ये मौसम जो है गुजर जाएगा, Your storms will be calm sooner. और आपके जीवन में जो तूफान है वो भी थम जाएगा, Your hearts will be mended again. और आपके टूटे हुए दिल जो है फिर एक बार जुड़ जाएंगे, Your struggle will come to an end. और आप जो भी तकलीफों में हो वो अंत हो जाएगा। But in all of this happening, don't forget to remember. और ये सारी चीजें जब हो रही है, आप भूलना नहीं कि आप प्रभु को याद करें, Remember your worth in God. और याद रखना कि आपका मोल क्या है प्रभु में, Remember His promises. और याद रखना उसकी वाचाओं को, And remember that He is your destiny. और याद रखना कि वही आपका मुकाम है। Why don't we close our eyes and pray together? क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम एकत्र प्रार्थना कर पाए। Lord God, we just thank you for the word that you have given us. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। God, you just bless us through this week. प्रभु, आप हमें आशीषित करना इस सप्ताह में, And God, when we forget that
what is our worth in you. और प्रभु जब हम भूल जाते हैं कि हमारा मोल क्या है आप में, Or God, if we forget our destiny, or if we forget your plans and promises for us, या फिर हम अपने मुकाम को भूल जाते हैं, या फिर आपने जो वाचाएं हमारे जीवन में डाली है उस बातों को भूल जाते हैं, you just keep us reminding through your Holy Spirit और आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बस याद दिलाते रहिए इस and बात keep को, us protected in this season और मदद करना या फिर हमें सुरक्षित रखना इस मौसम में, and help us get closer to you. और मदद करना ताकि हम आपके और भी निकट या फिर करीब आ सकें। In Jesus' name I pray. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Thank you so much for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, See you next week. और हम आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे। Stay home, stay safe, और घर पर रहना, सुरक्षित रहना, and we are praying for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करें। Thank you. धन्यवाद।